parallel operation and all that I haven't Yes. shared. No, ma'am. You have shared Okay. the Okay, starting one. wait, now I'll check today everything and I'll share with you, right? Okay, ma'am. Now we Okay. have to start with the second unit. So our second unit is synchronous motors. So again, synchronous motor is the something which converts AC electrical power to mechanical power. And this motor again runs on a constant speed, which is the synchronous speed. This is the plus point or USP of this motor, that irrespective of a load condition, कि तुम कितना भी लोडिंग करो मोटर पे, मोटर के शाफ्ट पे तुम कितना भी लोड डालो, ये मोटर का स्पीड चेंज नहीं होता बिल्कुल. समझ रहे हो बात को? सो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड मोटर. तो जहां पे भी तुमको ऐसा एप्लीकेशन है कि तुमको कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना है, वहां पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं. ओके, एंड मोटर्स आर टेकिंग इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड गिविंग मैकेनिकल आउटपुट. इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है मतलब वोल्टेज लेगा, और आउटपुट क्या देगा? आउटपुट देगा टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट? Yes, ma'am. Okay. So now see, the synchronous motors works on the principle of rotating magnetic field. Now what is this rotating magnetic field? In the name itself, it tells that the field which is produced by a magnet, and this field is continuously rotating in a space with respect to time. नाम में ही बता रहा है ना, rotating magnetic field. Magnetic field तो है, but continuously क्या हो रही है? Rotate हो रही है in the space. So how we can produce this effect? So suppose I am having a bar magnet in my hand and I am rotating that magnet continuously. So that effect is nothing but the rotating magnetic field effect. और इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखो, the rotating magnetic field can be defined as the field or flux having constant amplitude or constant magnitude, but whose axis is continuously rotating in a space. ऐसी फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब 5 वेबर की फील्ड जनरेट कर दी एक बार मैग्नेट ने, तो 5 वेबर ही रहेगा एवरी टाइम. बस उसका एक्सिस क्या होते रह रहा है? चेंज हो रहा है. दैट फील्ड वी हैव टू प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग दैट फील्ड, दैट वी हैव टू सी टुडे. यहां तक सब लोग क्लियर है? Yes, ma'am. We have to produce a rotating magnetic field, RMF. What is RMF? RMF is the field whose magnitude is continuously, whose axis is continuously rotating and magnitude is constant. Okay. Now we are doing we are using star connected armature, है ना? तो हमारा आर्मेचर कैसे रहता है? हमेशा स्टार कनेक्टेड रहता है. This is your R phase, this is your Y phase. Bear with these diagrams because ये माउस थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा. This is your B phase. ठीक है? We are giving 3 phases applied to this. With the help of this switch, it is connected to R phase. Then this Y phase of the supply is connected to the Y phase of the armature, and B phase of the supply is connected to the B phase of the armature, right? So this is the R, Y and B phases of supply. और सप्लाई यहाँ पे लिखोगे, सप्लाई कैसा है? 440 वोल्ट, हमेशा रेटिंग लिखना है. 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 3 फेज एसी सप्लाई. और सभी के हाथ में पेन एंड नोटबुक होनी चाहिए. जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ फटाफट ड्रॉ करो, क्योंकि डेरिवेशन है आगे जो तुमको करना है. ठीक है? तो जल्दी से नोटबुक पेन लो एंड स्टार्ट ड्रॉइंग दिस. तो ये सप्लाई दिया हम लोगों ने. नाउ बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई, जैसे तुम ये स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा? करंट IR विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द फेज R. ये करंट IR फ्लो होगा फेज R से. ये फेज Y है और ये क्या है? फेज B है. Similarly, the current IY will start flowing from the phase
from this phase Y, and current IB, see this current IB will start flowing from the phase B. Now any current carrying conductor will produce magnetic field in the surrounding, right? So because of this IR, the flux phi R will produced into the phase phi R, into the phase R, right? अगर कुछ समझा नहीं तो इमीडिएटली मुझे बोलो. सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होंगे विच इज नथिंग बट द phi y, और यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होंगे विच इज phi b. Okay, so in all in the system we have three phases. Which three phases? Phi r, phi y and phi b. And total flux phi t is the addition of these three. जो total flux phi t रहेगा हमारा phi t bar will be the addition of this phi r, और वेक्टर एडिशन है इसलिए बार लिखते हैं, तो तुमको नोट डाउन करना ही है, ठीक है. टोटल फ्लक्स phi t is equals to phi r bar plus phi y bar plus phi b bar. ओके, यहाँ तक सब लोग क्लियर है? Ma'am, Yes, the ma'am. B phase, the B हाँ. phase where it connects, Which phase? B. the B phase. ये क्या? Yes. ये क्या? ये जो B phase है, The armature B. ये क्या? ये B phase यहाँ से यहाँ B को कनेक्टेड है. Okay, उधर jumping है ना बाहर तो दिखा नहीं. ये देखो, ये डायग्राम है, तुमको नोट्स ये मिलने वाले हैं, ठीक है. R connected to Okay. R, Y connected to Y, और B connected to B. तो अभी हमको ये दिखाना है the magnitude of this phi t is always remains constant but whose axis, this axis of phi t is always changing, and तभी तो ये जो फील्ड क्रिएट होगी, ये फील्ड क्या होगी हमारी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, बराबर है. तो नाउ वी आर टेकिंग दिस phi r एज अ रेफरेंस. हम लोग क्या करते हैं? phi r को रेफरेंस लेते हैं, राइट? तो phi r को रेफरेंस लो. दिस इज द अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ phi r. देन phi r के पीछे 120 डिग्री होता है phi b. तो phi b विल कम लाइक दिस. phi r के पीछे 120 डिग्री. b बोल रही हूँ क्या मैं? phi r के पीछे phi y 120 डिग्री, और phi y के पीछे phi b 120 डिग्री, लाइक दिस. This is your phi b, right? These all are the assumed positive direction of phi r, phi y and phi b. Okay, these are assumed positive directions. Now I wanted to write down the equation for phi r. How I can write down? First, I will consider the maximum magnitude of phi r, which is phi m. Maximum magnitude bola na, which is phi m. And sine of omega t. Sine of omega t. And this omega t I can replace with the theta. So ultimate equation क्या बन जाता है? Phi m sin theta. Ultimate equation क्या बनेगा? Phi m sin theta. Give their equation number 1. जैसे मैं लिखती हूँ वैसे तुमको नोटबुक में लिखते चलना है. ये रेफरेंस फेज के लिए लिखा इक्वेशन phi r के लिए, वैसे ही तुमको phi b के लिए लिखना है, phi y के लिए लिखना है अभी सेकंड, ठीक है? तो what will be the equation for phi y? Can anybody tell me? Phi y is equals to phi m Sin omega t minus 120. yes, sine of omega t. ओमेगा टी के जगह पे, ओमेगा टी के जगह पे मैं सीधा थीटा लिख देती हूँ अभी इसमें. सो थीटा, और y लैगिंग है ना r से, इसलिए माइनस साइन. और कितने डिग्री में लैगिंग है? 120 डिग्री में. सो माइनस 120 डिग्री. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2.
Now similarly we can write down the equation for B, phi B. Can anybody tell me? Phi m sin omega t, phi m sin theta plus 1. प्लस कैसे? प्लस थीटा, क्या बोला? थीटा Theta plus 120. प्लस 120 लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लैगिंग ही Minus लिखेंगे। 240. हाँ, माइनस ऑफ 240. ठीक है, give your equation number 3, right? So you have got phi r, phi y, phi b. Now we have to plot the waveform for this. Now suppose okay, this is the maximum amplitude which is phi m. ये जो इक्वेशन में हमने डाला है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये अभी सपोज फाई आर पहले 0 पे था, 0 से निकला फाई आर इस पोजीशन पे आया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहा है एंड विद द पर्टिकुलर टाइम ये यहाँ पे आया. सो ओमेगा इंटू टी जब होता है तब ये इधर आता है ना. सो ओमेगा इंटू टी is nothing but the angle subtended at the center, which is nothing but theta. That's why we are replacing omega t with the theta in the equation. Okay, so this is for the phi r. See, phi r ये पहले 0 से निकला, फिर मैक्सिमम पे गया phi m पे, फिर 0 पे आया, नेगेटिव मैक्सिमम पे 0 पे. तो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर phi r. ये तो इजी है. एक मिनट, ठीक है. तो दिस इज द phi r. नाउ अभी देखो यहां से यहां तक 180 है. एवरीबॉडी इज विद मी ना? यस मैम. Yes, ma'am. यहां से यहां तक 180 है, तो इसके हम लोग 3 पार्ट्स करेंगे. तो सपोज ये 60, देन दिस इज 120, दिस इज 180. तुमको अपने नोटबुक पे बनाना ये 180, देन दिस विल बी 240. बराबर है ना रे? 180 के बाद 240 और फिर ये 300, हाँ ये 360 एंड सो ऑन. लाइक आगे अगर 2 लोगे और तो 420 और 480. तो फाई आर आ गया. अभी हमको जाना है फाई वाई के लिए. ठीक है, तो हाउ टू डू फाई वाई? फाई वाई विल स्टार्ट विद द 120, क्योंकि फाई आर के बाद आया ना 120 साल बाद. तो इसको यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करोगे 180 डिग्री. ये 60 का है, ये 60 है, ये 60 है. तो इधर खत्म होनी चाहिए वेवफॉर्म. और मैक्सिमम किधर जानी चाहिए? ये 120 एंड 300 के बीच में. तो कहाँ पे जाएगा मैक्सिमम? यहाँ पे बीच में. बराबर है. तो यहाँ से वेवफॉर्म ड्रॉ करना स्टार्ट करो. इसको यहाँ पे मैक्सिमम पे लेके जाओ, 300 पे 0 पे लेके आओ, फिर से 300 से. Start all the. हाँ. We have to start all the waveforms from reference 0, right? So from अरे there only तुम we मेरी can बात start तो of सुनो ना 120 पहले. degree मेरी phase. बात तो पहले सुनो सारी. Who said you that Okay. we have to start everything from the 0? We are going towards the 0, but this is the way to draw 3-phase waveform. Okay. तो देखो यहाँ से यहाँ तक 60 60 60, तो ये यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम पे जाएगी. तो ऐसे इधर मैक्सिमम पे लेके जाओ, यहाँ पे 0 पे लेके आओ. ओके, नाउ अभी इसको पीछे खींचो. पीछे कैसे खींचोगे? 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. थर्ड पार्ट रहता तो 0 पे जाती. ठीक है, अभी ये 1.5 पार्ट पे ये मैक्सिमम पे आने वाली है. तो यहाँ पे इसका ऐसा मैक्सिमम ड्रॉ करो. इसको खींचो पीछे, यहाँ पे इसको मैक्सिमम पे ले आओ और फिर इसको मिनिमम करो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर 5y. हो गया 5y कंप्लीट.
जब 0 से स्टार्ट करोगे ना तो समझता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है क्या करना है, इसलिए हम लोग 120 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करके फिर उसको पीछे खींचते हैं. देन थर्ड वन इज व्हाट, द थर्ड वन इज 5B जो 240 पे स्टार्ट होगा. 240 पे स्टार्ट होगा वन पार्ट, then this is the second part, right, and this one is the third part at 240. हाँ का 240 420 बराबर है ना. 1 2 and 3 और मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम जाना चाहिए. 240 से फिर से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो, 240 पे यहाँ पे आगे तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, देन इसको अभी पीछे खींचो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, यहाँ पे बीच में कहाँ पे तो भी सेंटर में मैक्सिमम जाएगी 0 और फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो गई. सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ 5B. Have you understood how I have drawn this? Yes, ma'am. Huh? Yes. Everybody? Yes, ma'am. Yes. Okay. सबसे पहले फायर करो, जो 0 से स्टार्ट होगा रेफरेंस है, 5Y 120 से ही स्टार्ट करना है, 5B 240 से ही स्टार्ट करना है. पहले आगे चलो और फिर उसको पीछे खींचो विद रिस्पेक्ट टू अदर्स. Now I am interested to find out the value of phi t, right? So I am considering some cases. Suppose I take case 1. नीचे लिखो, तुम्हारे नोटबुक में लिखो case 1. Case 1 when theta is equals to 0 degree. When theta is equals to 0 degree, can anybody tell me what is the value of phi r? Phi r is equals to phi m sin 0, है कि नहीं? Zero. थीटा के जगह पे 0, तो कितना आएगा phi r? 0. Phi r 0 हो गया, है कि नहीं? Similarly, find out phi y. Phi m sin 0 minus 120. Phi m sin 0 minus 120 मतलब minus 120, है कि नहीं? और sin of minus theta is minus sin theta. तो कितना आया, जल्दी जल्दी बोलो. Minus 5M cos theta. माइनस phi m, बोलो. Minus phi m sin 120 degree. अरे sin 120 डिग्री क्या है वैल्यू? Cos 30. कॉस कहाँ से लाए हो? 90 minus 90 plus 130. अरे मेरी बात 90 सुनो plus 30 बच्चों, ना? कैल्सी पे sin 120 डालो ना, आई थिंक सो 0.866 आना चाहिए, √3/2. चल रहा है ये तो, चलो ये आया माइनस 0.866. एक बार वेरीफाई करो सिर्फ 866 है क्या? Yes, yes, 0.86. 866 phi m. ठीक है, the next phi m sin 0 minus 240, which is nothing but phi m minus phi m sin 240. How much? Minus 0.86. हाँ वो 0 और ये yes, it will be positive, Will be right? Plus. Yes. So it will be 0 point, ये 0 है, 0.866 phi m. तो करो इसके एडिशन. phi t क्या है तुम्हारा? phi r plus phi y plus phi b. कितना आएगा रे phi t, बताओ. 0. कितना आएगा phi t? 0. 0 आएगा. बट क्या 0 हो सकता है phi t कभी? सिस्टम में कभी फ्लक्स 0 हो सकता है क्या अगर करंट फ्लो हो रहा है तो? No, ma'am. नहीं, इसलिए हम लोग स्केलर एडिशन नहीं करते. ये स्केलर एडिशन किया ना हम लोगों ने,
दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर वेक्टर एडिशन, इसलिए इसके ऊपर क्या है, बार्स है। ये बार क्या बताते हैं, वी आर नॉट डूइंग अ स्केलर एडिशन, वी आर डूइंग वेक्टर एडिशन फॉर ऑल एसी क्वांटिटीज। ओके, नाउ कम टू दिस फिगर, दिस इज द अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने बोला ना phi r की ये अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी ये यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 5i की वैल्यू माइनस आई, -0.866 आई। तो अगर माइनस वैल्यू आई तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है ऐसे। सो दिस विल बी इट्स नेगेटिव डायरेक्शन। अगर phi r अगर कभी नेगेटिव आ गया तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, phi b अगर कभी नेगेटिव आया तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। समझा तुमको? ओके, now we have to find out phi t with the help of this phasor diagram, केस 1 के लिए। ओके, मैं एक नया पेपर लेती हूँ। अरे सेव ही नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो देखो phi r की वैल्यू 0 थी, सबने नोट डाउन किया है ना नोटबुक में, अपने नोटबुक में देखो अभी phi r की वैल्यू 0 थी तो उसको नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो, फिर भी समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे phi r रखते हैं थोड़ी देर के लिए, दिस इज योर phi r। देन उसके बाद दिस वाज योर 5i, बट 5i की वैल्यू आई नेगेटिव में, तो 5i को हमको पीछे खींचना पड़ेगा ऐसे। तो इसको पीछे खींचा है, एंड दिस इज योर अरे ये phi r है, सो दिस इज योर 5i, कितना वैल्यू है उसका, -0.866 पाई। और पाई भी तो पॉजिटिव है तो उसको ऐसे रहने दो। सो कितना उसका कितना वैल्यू है, 0.8 प्लस 0.866 पाई, राइट। अभी वेक्टर एडिशन करनी है, phi r तो 0 है तो phi r का सवाल ही नहीं आता, तो इन दोनों की वेक्टर एडिशन, तो प्रॉपर स्केल यूज करके इनको वेक्टर एडिशन करो इनके ऐसे, राइट। So here straight line you will get this phi t, upward straight line. So this is your phi t. Everybody have got how I have drawn phi t? Phi t is the vector addition of phi y and phi b. Okay? Say yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. But I am interested to find out, yes, I am interested to find out the magnitude of this phi t. So say that this is O, then this is A, this point is B, and draw a one perpendicular from B to D. Okay. अभी इसमें this is your phi y and this is your phi b. ये वाला क्या है, phi b है। तो phi r एंड phi b के बीच में कितना रहता है, 120 डिग्री रहता है एंगल, बराबर है ना। और ये पूरा है लीनियर पेयर 180 डिग्री का, ये लीनियर पेयर है, सबको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. यस, दिस इज 180 डिग्री का लीनियर पेयर, आउट ऑफ दैट दिस इज 120, तो ये बचा हुआ कितने का रहेगा? ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं सिंपल, दिस होल इज ऑफ 180, इसमें से ये 120 है, तो ये कितना रहेगा टोटल? 60. 60 रहेगा। 60 में से ये बाइसेक्टर जा रहा है तो ये कितने का रहेगा? 30. 30. 30. So this is 30 degree. Okay. I am interested to find out this O, ये पूरा O to A मतलब phi t। तो अगर मैंने OD निकाला और फिर उसका डबल किया तो मुझे phi t मिल जाएगा।
बराबर है ना? तो अप्लाई cos of 30 in this triangle. Which triangle? OBD. In this triangle OBD, this is 90 degree, this is 30 degree, and this one is the 60 degree remaining one, right? So apply cos of 30 here. So what will be the cos 30? OD upon OB. Cos theta. OD upon BD. OD upon Yeah, very good. OD upon BD. OD upon BD. Very good. तुम लोग ठीक से लिखो, ये BD है. तो देखो OD, can I write the OD like this 5t by 2? OD की जगह पे ऐसे लिखूं क्या? What is OD? OD is 5t by 2. ऐसे लिख सकते हैं OD upon OB, right? क्या? It will be OD upon OB, right? Adjacent upon hypotenuse. तो वही तो लिखा ना मैंने. अच्छा, OD upon Oh, OB. sorry. OB. बराबर है ना अभी? Yes. Yes, OD, ma'am. yes, OD upon OB, ये वाला. Now what is the value of OB? OB मतलब 5B. 665. हाँ लिखो 0.866 5m, right? What is the cos 30? मुझे लगता है √3/2 है. बराबर है ना? Yes, ma'am. हाँ, √3/2. ये 5t के 2 को नीचे लाओ. 5t का ये जो 2 था ना, इसको नीचे लेके आओ. यहाँ पे 2 लिखो. 2 into 0.866 5m. सबसे पहले 2 कैंसिल कर दो दोनों साइड से. तो व्हाट इज 5t? 5t is equals to multiplication of this 2. Tell me what is 5t? 5t is equals to 1.49. हाँ 1.499. 1.55. हाँ 1.499 आता है कैलसी पे. 1.5 लिख देती हूँ मैं फिर. 1.5 ये मिला मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ 5t. और डायरेक्शन तो ऊपर दिख रही है, एक्सिस दिख रहा है ना सबको ऊपर 5t का. सो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक्सिस ऊपर है. सो दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ 5t. मैग्नीट्यूड आया 1.55m. डायरेक्शन इज अपवर्ड. व्हेन योर थीटा इज 0. केस 1 समझा है सबको? एवरीबॉडी हैव गॉट केस 1? Yes, ma'am. Yes. यस. नाउ नीचे लिखो केस 2. नीचे लिखो केस 2. Case 2, when theta is equals to 60 degree. When theta is equals to 60 degree. फटाफट तीनों वैल्यू निकालो. चलो बताओ मुझे क्या आता है फायर. What is fire? Fire is equals to 5m IM Sin. by 2. 5m sin theta है ना. तो sin 60. तो कितना आया वैल्यू बताओ इसका. IM by 2. मुझे आवाज नहीं आता रे तुम लोगों का. क्या बोल रहे हो? 0.0213. चुप, कुछ भी. साइन 60 है ना. साइन 60 कितना आता है? 0.866 रहेगा. ठीक है. 0.8665. हाँ वेरी गुड. पॉजिटिव 0.866. ये पॉइंट है इधर. 0.8665. हाँ चलो 5y बताओ. 5y आएगा. Minus 0.8665. हाँ वेरी गुड. साइन ऑफ, मुझे लिखने दो पहले. साइन ऑफ 60 माइनस 120 ऐसा लिखना पड़ेगा ना. तो माइनस ऑफ 60. तो हाँ ये तो दिख के समझ रहा है. कितना आया? माइनस 0.8665. और 5b कितना आएगा? एंड हाउ मच 5b?
पाइम साइन 60 Zero, माइनस 0, हाँ 60 माइनस 240, that is sine of 180 or which is always equals to 0, so it is equals to 0. नाउ इसमें अभी हमको दो चीजों को प्लॉट करना है, किसको, फाई आर एंड फाई वाई को. अभी फाई भी 0 है, पहले केस में कौन 0 था, ये फाई आर 0 था, अभी कौन 0 है, फाई भी 0 है. ठीक है, तो प्लॉट करते हैं अभी, रुको. न्यू पेज पे लेते हैं ना. फाई आर है पॉजिटिव, फाई वाई है नेगेटिव. वेरी गुड. फाई आर है पॉजिटिव तो फाई आर तो लेना ही पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन. कितनी वैल्यू है, 0.866 पाई आर, राइट. हाँ, फिर फाई वाई है नेगेटिव इसमें, तो ये अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन है फाई वाई की. तो अज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए उसको पीछे खींचना पड़ेगा हमको. खींचो उसको ऐसे पीछे, तो ये हो गया तुम्हारा फाई वाई. वहां पे लिखो -0.866 पाई आर. और ये यहाँ पे जो फाई भी रहेगा ना वो 0 है. ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, बट समझने के लिए मैं करती हूँ ड्रॉ. दिस इज 120 डिग्री, ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 120. अभी दिस इज फाई टी इज द वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू. चलो करो, वेक्टर एडिशन करो लाइक दिस. टेढ़ी लाइन जाती. See this is your phi t. Again we are interested to find out the magnitude of this phi t. Give here O, इसको बोलो A, इसको बोलो B, और B से डालो एक परपेंडिकुलर जिसको नाम दो D. Now again okay, so this will be your 30 डिग्री, है ना. कैसे 30 डिग्री होगा ये, जरा बताओ मुझे. phi y completely is 180 degree. So it will be 30. देखो ना, अगर हमने इसको पूरा लीनियर पेयर कंसिडर किया, ये यहाँ पे अगर इसको ऐसे एक्सटेंड किया ना नीचे, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना. और आउट ऑफ दिस लीनियर पेयर दिस मच पार्ट इज ऑफ 120. नहीं, ऐसे नहीं करते आएगा. दिस इज दिस पार्ट ना. यस, ओके, दिस वी हैव टू कंसिडर. ये जो फाई वाई है ना, ये फाई वाई, मेरी बात सुनो, ये दिस इज द लीनियर पेयर. ये फाई वाई मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया. दिस इज द लीनियर पेयर. तो इन दिस लीनियर पेयर दिस मच पार्ट इज 120, यहाँ से यहाँ तक, फाई आर एंड फाई वाई के यहाँ तक. तो ये बचा हुआ कितने का रहेगा, 60 का. और 60 में से फिर से बाइसेक्टर गया, तो दिस मच पार्ट विल बी ऑफ 30. ओके, ये 90 है, तो ये बचा हुआ 60 हो गया. चलो, फिर से हमको यहाँ पे cos 30 अप्लाई करना पड़ेगा. हमको ये चाहिए टोटल फाई टी. फिर से cos 30 बताओ मुझे इसमें क्या आएगा. टाइम बहुत कम बचा हमारे पास. cos 30 इज इक्वल्स टू, टेल मी. OD upon OB. OD upon OB. हाँ, OD अपॉन OB, मतलब OD है फाई टी बाई 2 यहाँ पे फिर से, और OB है 0.8 0.8665. पाई आर. फिर से इसको सॉल्व करोगे तो तुमको सेम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है ना. Yes.
कितना मिलेगा तुमको phi t in this case also you will get the phi t as 1.55. 1.5 phi m. बट अभी जरा डायग्राम में देख के इसका एक्सिस बताओ, एक्सिस कहाँ पे जा रहा है? ऐसे पहले एक्सिस कैसा था? टोटल अपवर्ड है कि नहीं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर. अभी कैसा है? टिल्ट हो गया है, 60 डिग्री से टिल्ट होता है. ये कितने डिग्री से टिल्ट होता है? 60 डिग्री से. तो ऐसा टिल्ट करके यहाँ पे तुमको दिखाना पड़ता है 60 डिग्री, या फिर ये ऐसे दिखाओगे. पहले ऐसे था ना, तो अभी टिल्ट हो गया है कितने डिग्री से? 60 डिग्री से टिल्ट हो गया है. So what I am trying to prove is, with the help of this three-phase winding, I am constructing or I am getting a magnetic field whose magnitude is always constant at 1.5 phi m, but whose axis is continuously changing. When theta is equals to 0 degree, axis is upward. When theta is equals to 60 degree, axis is like this, tilted by 60 degree. Now next case you have to take when theta is equals to 120 डिग्री. नेक्स्ट केस क्या लोगे? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा 120 डिग्री से पहले एक हाँ ठीक है चलो 120 डिग्री लो. उसके और एक केस लोगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके. और हर एक केस में तुमको प्रूव करना है कि हमारा जो ये है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, बट एंगल इसका एक्सिस क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है. Or the field whose magnitude is remaining constant throughout but axis is changing, it's called as the rotating magnetic field. तो इसी का मतलब क्या है कि हमने by using three phase winding, by using this three phase star connected winding, we have produced the rotating magnetic field. ये जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है, इसको हमको पसंद आया, ऐसा स्टार शेप पसंद आया, डेल्टा शेप पसंद आया, इसलिए इसको ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है. जब हम लोग वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, तो हर एक वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री क्या रहती है? डिस्प्लेस रहती है. और जब भी वाइंडिंग 120 डिग्री डिस्प्लेस रहेगी तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देती है. देखो, तो ये हमने सब देखा, ये इक्वेशंस, फिर ये फेजर डायग्राम, assume positive directions, then how to draw this three phase waveform, ये सीखा हम लोगों ने. And then we have took these cases. Case 1 when theta is equals to 0. Case 2 when theta, then we have found out this magnitude upward जा रहा है. Case 2 theta is equals to 60. Now case 3 is your homework. Case 3 when theta is 120. Case 4 when theta is 180. 180. ओके, सबको समझ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? Ma'am, aren't 3 cases enough to prove it? हाँ Aren't 3 cases enough to prove it? हाँ, 3 cases enough, but in notes you have to do 4 cases because I have given 4 cases, right?